میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے۔ یہ ہماری جہلم کی سوغات کہتی ہے، اس نے بات کرنی ہے جائے اپنے حلقے سے لکھوا دیں، اس نے بات کرنی ہے حلقے سے، اس نے بات کرنی ہے حلقے سے، یہ تو اس سے زیادہ ڈرپوک نکلا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک سوال ہے، بولیے۔ آپ کس کی امت میں ہیں؟ اللہ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کی؟ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ چلیے یہ بتائیے آپ، ہم سب کس نبی کی امت میں ہیں؟ اعلیٰ حضرت صاحب پہ ہیں ہم تو۔ اعلیٰ حضرت صاحب۔ اعلیٰ حضرت صاحب کی امت میں ہیں۔ کہ آپ کس کی امت میں ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ کس کی؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت۔ توقیر رضا بھائی بتائیے کس کی امت میں ہیں؟ ہم صاحب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک سوال ہے، بولیے۔ آپ کس کی امت میں ہیں؟ اللہ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کی؟ ہاں۔ کس کی امت میں ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی۔ اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے، کہ ہم تو اعلیٰ حضرت کے خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نبی نہیں ہے، ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک نبی نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ، عالم دین، بہت بڑے مفتی اسلام ہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ اللہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس قدموں سے وابستہ رکھے۔ یہ لوگ اپنے بزرگوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے، ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ ایک فرقے کو لے کے چل رہا ہے، اور اس فرقے کا امیر ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ دادا صاحب کی گھوڑی۔ اچھا، لوگ ان کے اوپر ہنستے ہیں، اور بھئی ان کے اوپر کیوں ہنستے ہیں آپ؟ یہی کچھ ہے تصوف۔ وہ اپنے بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ان بزرگوں کی تو ابھی قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، ان کے قلمی نسخے ان کے مزارات کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ پرانے بزرگوں کو تو بچا لو گے، ان کا کیا کرو گے؟ ان کو تو بمشکل 100 سال ہوئے ابھی فوت ہوئے، ان کی کتابیں کیسے بدل گئیں؟ گستاخی نمبر 1، چشتی رسول اللہ حشت بہشت میں موجود ہے، اور سبا سنابل کے اندر موجود ہے، اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نعوذ باللہ، اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں سے مقبول بتایا، تو اعلیٰ حضرت تو سیکھ گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی۔ غوث وقت کو دل کا حال تو پتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس پلید کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے، اور اس پہ تر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب۔ آپ مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کیسے جان چھڑائیں؟ یہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے، اور چشت کی کتابیں جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہے۔ بالکل انہوں نے لکھا ہے، لیکن وہ انہوں نے سبع سنابل کے بارے میں نہیں لکھا۔ سبع سنابل کی تو تعریف کی ہے، اب پھنس گئے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، کیا کریں؟ اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو کفر ہے، البتہ جو صوفیاء کے ہاں چشتی رسول اللہ ہے نا یہ معرفت کی بات ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا کون مناظر ہے؟ وہ تو دفاع کرتے رہے اپنی کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا، اور یہ ایک ایک امیج میں لگاؤں گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آج 3 دسمبر 2023 ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے۔ ایک کو 100 سال ہوئے مشکل سے، اور ایک کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ یہ تو چشتی رسول اللہ والے واقعے کو مان کے گئے۔ اچھا، اب جب یہ فیل ہو جاتے ہیں نا، اب ان کو پتا ہے کہ ثابت ہو گیا، اب اگلا سٹیپ پتہ کر لیں گے، اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دونوں مریض ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ نے غور سے نہیں پڑھا، اس میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، وہ امتحان کے طور پر پڑھایا تھا۔ اچھا، کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی امتحان کے طور پر پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور پھر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے؟ ہاں، انجینئر صاحب کے گل کر دی تھی، ان میمز ہی بن گیا تھوڑی جی، امتحان لیا تھا نا سرکار، ہم سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے؟ میری تو داڑھی نہیں نکلی تھی، میں نے تصوف کی کتابیں رسالہ کشیریہ، کیمیائے سعادت، مکاشفۃ العلوم یہ اس زمانے میں پڑھی ہیں، کشف المحجوب۔ تصوف میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی کلمات کفر کسی سے کہلوائے، اور یہ شریف فقہی مسئلہ بھی ہے، آپ کو نہیں بتاتے کہ کوئی جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، خاص دل میں ایمان ہو بھی، کیونکہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہو رہا۔ گن پوائنٹ پہ ہو تو وہ سورۃ النحل میں ہے کہ آپ اگر زبان سے کفر بولیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، دل میں ایمان ہو تو بچ جائیں گے۔ گن پوائنٹ پہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، تو جو اپنی مرضی سے کھلوا رہا ہے
तो फिर वो इस जुर्म में शरीक है। कहते हैं बाद में उन्होंने कहा ना कि वो कलमा वही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इम्तिहान लिया था ना सरकार, चूंकि अब वो कुफर बकवा चुका, जब तक वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होता वो तो उसको मुरीद कर ही नहीं सकता। वो जो उसने मुरीद किया वो फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो खुद काफिर हो चुका था। ये कहते हैं ना, कोई झूठी मूठी भी लिख दे कादियानी तो काफिर हो जाता है। तो उसमें कहीं है कि उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो? और सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल करना, उनकी अपनी बैत भी टूट गई अपने मुर्शिद से। हाँ, और अब उन्होंने जब तक अपना पीर कोई तलाश नहीं किया वो आगे मुरीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तसव्वुफ की चेन नहीं जुड़ती जो इनके ख्याल में। और सबसे खतरनाक बात, तौबा तौबा तौबा, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ निकाह टूट गया, हाँ, मौलवी लब और वाबी ना हो गए। और अगर उन्होंने ये नहीं करवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। हाँ, लेकिन इनकी जिद है, ये दिफा कर रहे हैं कि नहीं कराया, तो पता नहीं, समझ नहीं आई, मनु समझ आ गई और तो समझाना पड़ेगा अपनी आवाम को। तो निकाह भी दोबारा करवाना होगा। इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तुम लोग हमले करो और तुम लोग ये समझो कि हम तुम्हें इस तरह आसानी से जाने देंगे, इस तरह नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले होता रहे। सारे लोग कहते नहीं पहले इंजीनियर, भाई पहले इंजीनियर मरवा दिए जाते थे, यूट्यूब नहीं होता था। अल्लाह भला करे अजमेर शरीफ वालों का, इन्होंने यूट्यूब बनाया और बगदाद शरीफ वालों ने कैमरा बनाया था, मैं तो कौन के रखता है, हाँ, और देवबंद शरीफ ने प्रिंटिंग प्रेस बनाए, हाँ, उसकी बरकत से। अगर ये उस जमाने में होता तो आप देखते कि इनका कब से तलखमा हो चुका होता। ये चले इसलिए है कि ये उस जमाने में हुक्मरानों की सपोर्ट में लॉन्च होते थे और हुक्मरान भी जाके बैठे रहते थे मज़ारात के ऊपर। वो हमारा भी एक अब्बा था मुगल खानदान का, औरंगजेब आलमगीर, 1400 उलमा को उसने रोटी खिलाई और फतवा आलमगीरिया लिख लिया। हाँ, कहते जी उन्हें कहते नमाज नहीं छड़ी, पर भी नहीं कोई जिंदा छड़िया उन्हें। हाँ, बाप को भी 9 साल कैद में शाहजहां को रखा, और ये शाहजहां उसका बाप वो था जिसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया था, उसी बीवी का ये बेटा था औरंगजेब आलमगीर। उन्होंने कहा अब्बा जी मैं तो बदला लेना हूं, तो बड़ा इश्क चढ़ा थोड़ा इश्क में लाना वहां। टोपियां बना के गुजारा करते थे, भाई कत्ल करवा दिए, बाप को जेल में 9 साल के लिए रख के वहीं बाप मर गया। ये इनके बुजुर्गों के मेरात है। ये लोग हैं जो मज़ारात में बैठते थे और मज़ारों वाले इनके बेनिफिशियरी होते थे और ये उनके बेनिफिशियरी होते थे। इस वजह से उस जमाने में कोई इंजीनियर लॉन्च नहीं हो सकता था। इधर भी आज यूट्यूब ना हो तो यहां हजारों लोग आते, ये दावत इसी कमरे में ही दफन हो जाती। ये तो अल्लाह ताला ने इस्लाम की नशत सानिया का फैसला किया है और लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हैं, वरना तो इन लोगों ने अपने बाबों के साथ जोड़ा हुआ था। तो इनका अब ये कहना कि जी किताबें बदल गई हैं, वो भी इनका झूठ निकल आया, क्योंकि इन्होंने मुनाजरे किए हैं और पीछे बैठ के सुभान अल्लाह पढ़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर। आज कहते हैं किताबें चेंज हो गई हैं, वो एक मुजद्दिद साहब आए हैं, मैंने ना मुजद्दिद का वो, मैं इस सिस्टम का कोई बेनिफिशियरी नहीं, सीधी सी बात है अल्लाह के फजल से, लेकिन अपनी आखिरत तो कम से कम संवार लो। हमारे मुल्क में भी एक सौगात है जिसको लोग इंजीनियर जहलमी के नाम से जानते हैं। ये इंजीनियर जहलमी इससे 1000 गुना इस मसले पे वो बेहतर है। जावेद अख्तर बोले जरूर है, मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मुनाज़रे के अंदर दौड़ने में वो ये उससे ज्यादा बदतर है, वो नहीं भागा। वो चाहे काफिर कह दे, मुलहद कह दे, थीस कह दे, जो कह दे, लेकिन वो बंदा डट के मैदान में आया। उसने नहीं कहा मुफ्ती शमाइल को कि जाओ पहले सारे मुसलमानों से अपनी नुमाइंदगी लिखवा दो। ये हमारी जेलम की सौगात कहती है, इसने बात करनी है जाए अपने हल्के से लिखवा दो, इसने बात करनी हल्के से, इसने बात करनी हल्के से। ये तो उससे ज्यादा डरपोक निकला। मैं ये कह रहा हूँ कि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। जी जी, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर एक मुनाजरा हुआ है और जाहिर है बहुत दूर दूर तक पहुंचा है, उसके असरात भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बैठ जाए, हम आपको गारंटी करते हैं जो शराइत आप देंगे उन शराइत। मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक शर्त कि जिस मकबे फिक्र का वो मुफ्ती है ना, उनका बड़ा लीडर उसे नॉमिनेट कर दे कि ये हमारे मकबे फिक्र का, उनसे लिखवा के ले आए। नहीं वीडियो लिख के दे दें। वो सरकार लिख के क्यों, लिख के मैं ले देता हूँ, मैं बना देता हूँ। आपको मुफ्ती मुनीर साहब का अपने हाथ में चाहिए, मैं भी बना देता हूँ लिख के। नहीं लिखनी बात लगवा ले सरकार। आप मुझे मीम पता क्या, और सरकार एक मिनट मीम बनेगा, इंजीनियर डर गया। मीम बनाने वाले आपके नहीं है, आपका सारा मीडिया मिलकर वो काम नहीं कर सकता जो हमारा एक्सप्लोर करता, छोड़ जाए। वो मेरी बात डर गया सरकार, ये मीम बनाने वाले कोई भी नहीं बनाएगा, मीम साहब की बनेगी। वो इतना मैंने मटेरियल दे दिया, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ मैंने दे दिया है। तो 95C की भी आपकी बनेगी, आप देखें होता क्या। हाँ, तो बात ये मैं अज़राए तफन्नुन बात कर, आप उस मीम वाली जो बात आप देखिए, आप डिजिटल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि तख्ती पे मुझे लिख के दे दें। हाँ भाई, ये दौर है, मोबाइल आपके हाथ में, आप जाएं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो क्लिप चाहिए कि मुफ्ती मुनीर साहब यूं कहें कि मैं इस मुफ्ती को बरेलवी फिरके की तरफ से रेहान भाई, लगता है आपको बात समझ आ गई, समझ आ गई आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो मुफ्ती मुनीर साहब कहें कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार, मेरी हार मेरे फिरके की हार। ये 2 जुमले आपने बोले और ये वो जुमले हैं जो खुद एग्री करते हैं ये लोग। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनके फिरके के जो बड़े हैं वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। एक छोटा सा क्लिप बना दें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। और मैं ऐसे बड़ी बात करता हूं, दुनिया के किसी देवबंदी मुफ्ती के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं, तकी उस्मानी साहब उनके हाथ में वीडियो बना दें और टाइम क्या तक है।
रेहान भाई, अब आप कैमरे की तरफ देख के ना जरा मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट करें ना, तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब को कि यार इधर मक्कू गोल करिए, क्योंकि 290 सीट देते लवाई तो कामयाब नहीं हुई है, तो ए बड़ा तरीका है मांडू लाने का लिख एक बना दो। नहीं, वैसे मुफ्ती तकी उस्मानी का ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का हाथ है 295 सी लगाने। ओह छोड़ देना, फिरके का तो है ना उनके, ये जरा वीडियो में कहें मुफ्ती साहब एक छोटा क्लिप बना दे, मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करें। मैंने आपको सुना, आपने क्रेडिट दिया मुफ्ती तकी उस्मानी को। अच्छा मैं मुफ्ती साहब मेरी बात सुन लेना, रेहान भाई की जरा बात सुन ले, इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का। अच्छा, बात आपकी ये है करें मुफ्ती करें, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को अल्लाह ताला पहले तो सेहत अता फरमाए, माशाल्लाह सेहतयाब हो गया, दोबारा से बैठ के लगा रहे हैं रियासत को, वो आए हैं, मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप वीडियो बना दें, छोटी सी वीडियो, क्लिप नहीं है, क्लिप भी नहीं चाहिए, क्लिप नहीं चाहिए, चंद सेकंड। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को क्लिप्स की जबान समझ, फिर वो कहेंगे आप यही सरकार दुनिया में ऐसे ये भी प्रॉब्लम है ना एआई जनरेटेड है, वो सरकार वो अपने वो कहेंगे फोरेंसिक कराएं, कुछ भी नहीं मैं कहूंगा, हमें ऐसा बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो चैनल है ना, उसके ऊपर वो अपलोड होगी वीडियो उनके मुफ्ती की, ठीक है, पूरी दुनिया देख लेगी। जब उसकी व्यूअरशिप जाएगी 1 मिलियन में, ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वीडियो में ऑन कर लिया है, उसके बाद वो उसे एआई के जो मर्जी के, मेरी जिम्मेदारी में बैठने के लिए तैयार हो। ये 1 मिलियन तक जाना भी शर्त है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि फौरन चली जाएगी, जाहिर है ये तो बहुत बड़ी खबर होगी। मैं आपकी फोटो लगाएंगे तो बिल्कुल जाएगी फोटो आपकी। मैं आपको अभी बताता हूं कि अगर मुफ्ती मुनीब साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरी तस्वीर लगा के कहें कि इंजीनियर साहब, हमने अपनी ख्वाहिश के ऊपर आपको सामने बिठाने की खातिर आपकी एक छोटी सी जो इंटेलेक्चुअल शर्त है वो तस्लीम कर ली है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी जुबान उतनी चर्ब नहीं है जितनी आपकी है, तो हम अपनी तरफ से एक चर्ब जुबान वाला फला मुफ्ती लॉन्च करने लगे हैं, जो हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसकी जीत हमारी जीत, उसकी हार हमारी हार होगी, और हमें एतमाद है कि हमारा खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। तो डबल विकेट खेलनी है, डबल विकेट खेलने, T20 खेलना है, T20 खेलने, T10 खेलना है, T10, टेस्ट खेलना है, टेस्ट खेलने। और ये ऑफर जो है महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, जब कभी तैयार हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक इनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ, उसकी वजह है कि उनको पता है कि इंजीनियर ठीक कहता है। आप अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पूछ लें कि मैं जो कुछ बरेलवियों और अहले तशय्यो और अहले हदीस के बारे में कहता हूं वो ठीक कहता हूं, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं। सही। और उसके और बरेलवी कहेंगे कि इंजीनियर जो देवबंदियों के बारे में कहता है ठीक कहता है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं। ये सारे मुफ्ती मैं आपको बताऊं अंदर से मेरे साथ है, ये तो सारे मेरे रिले ने मुनाजरे का फैसला होगा ना सर, जो भी अच्छा ये फैसला फैसला हो चुका है। ये 298 सी का केस था ना, कितना बड़ा केस था, किसी बड़े मुफ्ती ने मेरे बारे में फतवा दिया मेरे खिलाफ? हूं तो गल हासिल ना पाओ ना, मुनाजरा का जो शरायत है वहां पे रखनी है, वो शरायत ही रखी, ये तय हो गया कि एक बात रखी है, एक शर्त रख दी आपने कि वीडियो पे काम पहुंचना चाहिए, वीडियो पे काम पहुंचना, और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भागेगा नहीं। क्यों भागूं? मतलब उनका ये इल्जाम होता है ना, टॉपिक भी तय करना, टॉपिक भी तय, टॉपिक अकीदा तौहीद, अकीदा खत्म नबूवत, बुनियादी अकायद पे बात होनी चाहिए, और तीसरे नंबर के ऊपर गुस्ताखाना इबारात। ये हमारा मेन इनसे इख्तिलाफ है। हमारा ये इख्तिलाफ नहीं है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो जिना कैप क्यों पहनते हैं, पगड़ी क्यों नहीं बांधते, उनकी मर्जी नंगे साथ नमाज पढ़े। हमारा इख्तिलाफ जो है उनके बुजुर्गों के बुनियादी अकायद के साथ, जो देवबंद के अल मुहन्नद में अकायद है। इसी तरीके से आला हजरत ने जो कुछ अहकाम शरीयत में कुफर के फतवे लगाए हुए हैं और मुर्तद डिक्लेयर किया है बाकी फिरकों को, जबकि उनकी अपनी किताबों में गुस्ताखाना इबारतें मौजूद हैं। हमें ये इख्तिलाफ है, और ये मनाजरे में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये चलाना फिर आपने लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा मनाजरा लाइव। जो आप अच्छा कब आएंगे आप? आपकी शायद, मैं तो यकीन मारे इस वक्त खुशी से छत के साथ लग रहा हूँ। मैं तो कब होगा? मैं तो कब होगा? ये तो मैंने तो कबूल कर ली ना, जब शर्त पूरी हो जाएगी तो फिर मनाजरा में। और ये बुनियादी चीज है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। या मुझे मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर किसी दूसरे मुल्क का विजिट करेंगे तो वहां का लांस नाइक उनको वहां पे रिसीव करेगा और उसके साथ मीटिंग करेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए दोबारा करो। वो वहां के आर्मी चीफ से बात करेंगे, खा वो लीबिया का आर्मी चीफ हो, खा वो ईरान का हो। वहां कोई ये नहीं कह सकता कि एक एटॉमिक मुल्क का आर्मी चीफ एक नॉन एटॉमिक मुल्क के आर्मी चीफ को नहीं मिलेगा, उसका लेवल नहीं, वो लेवल बराबर ही समझा जाता है दुनिया में। क्यों? दोनों अपने अपने मुल्क के आर्मी चीफ है। इसी तरीके से अगर ये समझते हैं कि मैंने कोई नया स्कूल ऑफ थॉट लॉन्च किया, हालांकि मैं सबको मुसलमान समझता हूं, इनको चंदे दे दो, इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूं, तो इस फिर दावत की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूं ना, उसूलन तो मेरी डिमांड ये होनी चाहिए। आर्मी चीफ आप है सरकार, प्राइम मिनिस्टर, मैं डेमोक्रेटिक बनता हूं, प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ। हाँ, होना ये चाहिए कि दूसरी तरफ भी उसूलन मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब साहब बैठे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे हैं। ये मैंने आपका दिल रखने के लिए, आपके चैनल की व्यूअरशिप के लिए एक स्टेप नीचे आ गया हूं कि चले यार खुद नहीं कर सकते तो उनकी ख्वाहिश पे और रेहान भाई की ख्वाहिश पे, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूं। जितनी बार मैंने कहा, इनके जवाब में कहा, ये ज़हन में रखिएगा, मैंने कभी किसी मुफ्ती को चैलेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि सच्चा तुम्हारे सामने बैठ, तो मैं जवाब देता हूं। तो मैं आपकी मासूमाना ख्वाहिश पे और इन फिरकों के बड़ों की मासूमाना ख्वाहिश पे मैं एक स्टेप नीचे आ रहा हूं, वरना मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि इनके मुफ्ती बैठे हैं, किस दिन काम आने हैं। इतने अरसे से ये 80-80, 90-90 साल के जो मुफ्ती हैं, जो इतनी मेहनत से, आप देखें अमेरिका में जज रिटायर नहीं होता, 80-90 साल का भी हो जाए, मेहनत से बंदा आपने तैयार किया है ना, उस तरह से एक्टिव नहीं है माशाल्लाह जैसे आप एक्टिव हैं। अल्लाह के बंदो, ये अभी एक हफ्ता पहले, ये रुक जाए, 22 दिसंबर 2025 को, आज है 28 दिसंबर 2025, ये सारे बैठे हुए स्टेज के ऊपर और किस तरह गरज रहे रियासत के ऊपर, ठीक है, के ऊपर गरज रहा, जाहिर है वो एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था मदारिस वाला।
मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से हाँ, रजिस्ट्रेशन। तो आप कह रहे नहीं उनकी जुबान नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है। आप जितनी तो जाहिर है इस उम्र में नहीं चलती ना जितनी आपकी चलती है। आप उलमा की तौहीन कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी जुबान चलने में इन उलमा से जो इतने अरसे से काल अल्लाह और काल रसूल कह रहे हैं, ज़ईफुल उम्री में कोई चीज होती है सर, मैं तो उसका अच्छा बेनिफिट शुक्र है मैंने कहा आप ज़ईफुल इत्कादी कहने लगे। ज़ईफुल उम्री अभी आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, हमारे बड़े हैं। नहीं मेरे तो बड़े हैं। मैंने तो कहा कि अगर अकेडमी कभी आए तो मैं जमीन पे बैठूंगा, यहाँ उनको बैठाऊंगा अपनी कुर्सी पे। मैं दिली रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस था कि कभी ये दो मुफ्ती मेरे खिलाफ फतवा नहीं देंगे, ना तकी उस्मानी साहब देंगे और ना मुफ्ती मुनीफ साहब, क्योंकि उन्हें पता है ये नाहक हो रहा है। लोग मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं, उन्होंने कहा मैं तो नजराती कौंसिल का हिस्सा ही नहीं, जाके उनसे पूछे जिन्होंने फतवा दिया। तो इनका एहतराम और अकीदत बढ़ नहीं गई आपके साथ? पहले ही बहुत ज्यादा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे कातलाना हमला हुआ, मैं नॉन देवबंदी वाहिद बंदा था प्लेनेट अर्थ पे जिसने उसको कंडेम किया था कि तालिबान की तरफ मंसूब किया जा रहा था, टीटीपी की तरफ, कि उन्होंने हमला करवाया। तो मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तारीफ की थी, दर्जनों मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये 295C के केस के बाद मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं हमेशा से करता हूं, सारों की करता हूं। पापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार। यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मनहूस शक्ल। अर्ज किया उसका मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मेरे छोटे छोटे क्लिप काट के देखो जी यानी कि कहता जी, देखो जी यानी कि कहता जी। तो कहना मैं इमाम जलालुद्दीन स्यूती दे मैं स्यूती मां चलो हाँ वो स्यूती ने बंदे वेखे उन्होंने मैं स्यूती हां मैं आज तो वो मुंह करदा है के पूरे जी आ मैं आख्या तू स्यूती नहीं तू लूती है, दिल तो कर तेरा मुंह तोड़ दूं। और अगली गल मैं क्या तू स्यूती नहीं तू है जेलम दी कुत्ती ते रोड दे उत्ते बन्नी होई है, हर बंदे नु तू पै जाना है। पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ बाहर। मैंने इनको कहा कि जितना मुझे छेड़ेंगे आपकी कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आपके मसलक का जनाजा आंदा 30 सालों में निकलना है ना तो मुझे छेड़ना छोड़ दें तो ये 35 साल में निकलेगा, लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे ना तो ये 30 से 10 ही रह जाएंगे फिर पीछे, क्योंकि मैं तो फिर उस तरह ही रिएक्ट करूंगा। आपको पता है जब भी कोई बात करता है तो फिर मैं कहना आवा फिर मैं दसा हाँ, मैं कोई गांधी साहब की तरह नहीं हूं कि मैं मुल्क छोड़ के तो दूसरी जगह जाके बैठ जाऊंगा और इन टॉपिक्स को एड्रेस करना छोड़ दूंगा। नहीं, आप जितना छेड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो तय कर दिया कि मैं 302 चलती फिरती, सारे जब मैंने अपने लिए तय कर लिया तो फिर तो जितना भी अल्लाह मुझे वक्त देगा तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ऐसे नहीं रखो, वैसे तो ठोक दी है अल्लाह के फजल। सियाने कहते ने एक है हड़की दुआ रात बननी हुई है। वो दादा खौफ कर यार, तेरा प्यो है नहीं तू साड़ियां बाबियां नु पै गए। मैं थोड़ा जख्म छिलांगा चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। उसका एक चमचा था, मैंने उसको एक ही सवाल किया, मैंने कहा यार सारियां छड़ दे, इस बर्रे सगीर के खित्ते में इस्लाम किसने फैलाया है? लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। आप लंबी चौड़ी नहीं ना कर दे। मैंने कहा अगली बात ए जी में तेरा मिर्जा कहते ना टाइम क़यामत तक, टाइम क़यामत तक है, जुरत करो। टाइम क़यामत तक अल्लाह ने दिता सिर्फ शैतान नु, तुहानू पता होना चाहिए। अनज़िरनी इला यौम युबअसून उन्हें आख्या सी या शैतान कोले या शैतान दे बच्चे कोले। ओ मामा सवाल दा जवाब दे, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, क़यामत तक टाइम हो छणकणा तू को रहना है। रुको जरा सबर करो, अभी बताते हैं तुम्हें। और तुम्हारे बच्चों ने मोबाइल ही चेंज नहीं रो तको हाँ, और धमकियां लगा रहे थे जी हमारे बाबू ने इसको अंदर कर दिया। मैं अंदर तो फिजिकली गया था, आवाज तो मेरी हर जगह गूंज रही थी हाँ, मीम्स की शक्ल में इन्हें हॉन्ट कर रही थी, वो क़यामत तक हॉन्ट करेगी। तो इन बनु उमैया के बंदरों की चीखें आप क़यामत तक एंजॉय करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले लोग जब तक के इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, उनके मिशन के लिए ये जो रेनेसांस हो रहा है, नशत सानिया, इसकी पासदारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तू को रहना है क़यामत तक। गल सुन ला, मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों लत्था जिन नहीं खोता। ओ लख लानत तेरे जम्मन। समझ आई ना, खोती दा जो है तो खोता ही होया ना, समझिया करो इस बात नु। वही जो आप समझ रहे हैं हाँ। सिर्फ एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो, अफ्रीका का बांदर लगेगा। और मेरी बात सुनिएगा, मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा बता इस्लाम किसने फैलाया? देखना पड़ेगा। मगर बस फूक निकल गई ना, ऐ ही तुहाडी औकात, बक बक सीखी तुसी। मैंने कहा मेरे 2 बातें लिख के ले जा, कभी जिंदगी में याद करेगा। पहली बात, यहां इस्लाम फैलाया बुजुर्गों ने, एडी बड़ी बोंगी मारी है। अगर तेरी तहकीक में कोई और हो जा मेरे सामने लेके आ,
और मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा इंशाल्लाह, रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है। और अगर बुजुर्गों ने फैलाया है तो फिर हुण कहना बाबे शाही को नहीं हो, तुसी सिखां दे मुंडे हो। बापा जानी जो है इलियास कादरी साहब, इस वक्त सबसे बड़े इनके गौसे वक्त है ना, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी से मुतालिक एक किताबचा लिखा है, जिन्नात का बादशाह, और चीनी जिन वाला, वो चीनी जिन जिसमें वो वाकया भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वाकया ना सिर्फ लिखा है बल्कि इनके जो छोटू मौलवी है ना वो वीडियो में भी बयान कर रहे हैं और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ भाग गया। और इन तालीमात को ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हम कहते हैं ये भी फ्रॉड है। उसमें पता क्या लिखा हुआ वाकया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो उन्हें वुजू करवाया करता था। एक दिन उसने वुजू करवाने के बाद जो लोटा है ना उसकी टूटी किबला रुख रखने की बजाय थोड़ी हटा के रख दी, जानबूझ के नहीं, बेध्यानी की वजह से। तो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निगाह मार के ना मुरीद को जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। वो मुरीद जो बेचारा इस उम्मीद में अपने बाबे से अटैच था कि ये मेरी हिफाजत करेगा, वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। हाँ जाहिर है बाबे ने कत्ल ना किया, 302 लगती है बाबे के ऊपर, हाँ ज़हन में रखिएगा। तो इनके बाबों ने इनकी आखिरत क्या बचानी है, इनके मुरीद अपनी आखिरत भी ले डूबे, बाबा भी नाल ही ला गए। तो कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने निगाह मारी लोटे की तरफ तो टूटी सीधी हो गई। ये इन लोगों का, इनके बुजुर्गों का, अब तो मैं कह सकता हूं ना इनके बुजुर्गों का, क्योंकि ये तो मानते हैं ना, इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम ले। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा, जो अपने मुरीदों को जला के राख कर दे, यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियोस ना डिलीट करवा सके, उनके साथ हमने अटैच होना, हमारा दिमाग खराब हुआ है। अब देखें इससे कितने मदनी फूल निकलते हैं। हाँ मेरा दिमाग किधर जाता है। सबसे पहला मदनी फूल तो यह है कि इनके बाबे जो है ना कत्ले न हक करते थे, 302 पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को न हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। इनके बाबे बकौल इनके, मैं नहीं कहता, बकौल इनके, हम तो उसने जान रखेंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी को तो बेचारों को पता ही नहीं होगा उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि ये करवा रहे हैं तो जाहिर है कि फिर उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि वो अपने मुरीदों को कत्ले न हक वाला ना सिर्फ मामला करते थे बल्कि मुरीदों की वजह से अपनी भी आखिरत बर्बाद कर ली। जाहिर है खुद भी जन्नत में चले गए कत्ले न हक करके, तो कुरान का फतवा है। आज तो बाबे और 302 कटावा होते। अच्छा उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि ये जो इनका दावा है ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पासबां है, अमीन है, उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहा है, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये होता था अपने साथियों के साथ? बुखारी और मुस्लिम दोनों उठा के देखें। अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल तक मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैं छोटी उम्र का बच्चा था, 10 साल की उम्र में मेरी वालिदा उम्मे सुलैम मुझे रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए छोड़ के चली गई और 10 साल में नबी इस्लाम के साथ रहा। कहते हैं उन 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने मुझे डांटा हो, मुझे कभी ये कहा हो कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कई बार नबी इस्लाम मुझे किसी काम से रवाना करते तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता। यार 10 साल का बच्चा खेलेगा ही ना। नबी इस्लाम ने कभी नहीं मुझे डांटा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और मुझे बच्चों में खेलते हुए देखते तो प्यार से बुलाते, उनैस, नाम था अनस, प्यार से बुलाते उनैस, बेटा मैंने तुमने फलां काम के लिए कहा था। वो कहते अच्छा रसूलुल्लाह मैं जाता हूं। बस ना डांटा कभी, ना मारा पीटा। और तुम्हारे बुजुर्ग जो कहते हैं हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचाएंगे, पहले आप तक पहुंच जाओ। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। इसका मतलब है कि जो कुछ तुम अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम कर रहे हो ना, वाकयात, वो सब के सब खुद फ्रॉड के ऊपर मबनी है। हम जो तुम लोग सही बयान करते हो ना वो भी सही मानने के लिए तैयार नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि मेरे सिलसिले में जो भी दाखिल हो गया तो अल्लाह ताला ने मुझसे गारंटी मुझे दी है। अंदाजा करे गैर पैगंबर जो 500 साल बाद आया उसके बारे में क्लेम कर रहे हैं, अल्लाह ने उसे गारंटी दे दी है। रसूलुल्लाह के बाद जो कह रहे हैं मुझे अल्लाह ने गारंटी दी है, तो समझ लो कि ए मुसलमा कज़ाब का छोटा भरा है, खा गुलाम कादियानी दज्जाल है या कोई और है। हम नहीं कहते कि अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा होगा, लेकिन इनकी जिद है। हम कहते हैं अगर जिद है तो लो सामो, फिर फतवा लो साढ़े को। तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव। तौबा तौबा, क्या कभी अबू बकर उमर उस्मान अली ने यह दावा किया कि तमाम साहबा की गर्दन पे हमारा पांव है? और ये आगे सुभान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं। अक्ल का मातम करे जी, मेरा मुरीद जो है वो मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो और उसका सितर खुल जाए तो मैं पहुंच जाऊंगा। मैं क्या बड़ो सुच्चे कादरी,
नीचे पजामा या कोई अंडरवेयर पहन के, तो पब्लिकली आप लोग अपनी तहमत खोल के बताएं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी आके आपकी तहमत बांध दें। वो कहते नहीं इस तरह तो बुजुर्गों को चेक तो नहीं करना चाहिए ना, ये तो वैसे उन्होंने फरमाया था। और प्रैक्टिकली एक हुआ है इंडिया में, एक मौलवी इनका कादरी तकरीर कर रहा था, बड़ा उछल कूद रहा था, उसकी शलवार उतर गई। वो आपने वीडियो देखी हुई है ना? और कोई नहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसकी शलवार ऊपर करने के लिए आए। सारे मुरीदों को जन्नत में साथ ले जाऊंगा। अल्लाह के बंदो, तुमने कुरान और हदीस पढ़ा ही नहीं हुआ। सूरह अश-शुअरा में जब वो आयत नाजिल हुई कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए, तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने अपने चचा अब्बास को मुखातिब किया, ए नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ा गया तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की बेटी फातिमा, मेरे माल से जो तूने लेना है वो ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। अंदाजा करें। और इधर ये लोग कहते हैं जी हम अपने मुरीदों को भी साथ लेके जाएंगे जन्नत में, उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। अल्लाह से डर जाओ। ये तकब्बुराना जुमले कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। अच्छा, फिर ये भी लिखिए, पूरा कसीदा उनकी तरफ कसीदा गौसिया मंसूब किया हुआ है, और वो पीर मेरे अली शाह साहब के दरबार के ऊपर जुम्मे के दिन मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो कभी कभार ही पढ़ा जाता है, कसीदा गौसिया बल वहां पे पढ़ा जाता है। ये क़यामत तक सूरज जो तुलू होगा वो मुझे मेरी इजाजत से तुलू होगा, मुझे बताएगा कि क्या कुछ होना है, पता नहीं क्या कुछ कहानियां लिखी हैं, मतलब जो कोई साबी भी नहीं सोच सकता अपने बारे में। तो ये सारी की सारी बातें करने के बाद फिर मैं बोलूं कि ना बोलूं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाह ही कोई नहीं। क्योंकि ये जितने मैंने 7-8 वाकयात आपको बाबों के बताए हैं ना, इसके मुकाबले में कुरान और सुन्नत की तालीमात बताई हैं। तो अब मैं हक बजाने में ये कहने में कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जो चीजें नबी इस्लाम उनके सहाबा के लिए नहीं है, तुमने बाबों के लिए क्लेम की है, तो हम कह रहे हैं ना ये हम बाबों को तौहीन के तौर पे नहीं कह रहे। और वैसे भी तुमने हमें खुद ये कहानी पढ़ाई हुई थी कि जी कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो, वो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक जो घोड़े के नथरों में बैठे, ये जो एक कहानी पूरी उन्होंने बनाई हुई है, कौन भी बनाई हुई है, चले ये तो मानते हैं इस कहानी को, उसके बराबर नहीं हो सकता। तुम तो कहते हो कि गौस कुतुब अब्दाल यानी तुम्हारे बाबे साहबा इकराम के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। जानवरों से बदतर समझते हो गौस कुतुब अब्दाल को, तुम ज़ाहिर है जानवरों से बदतर समझ रहे। हम तो इस बात को नहीं मानते, कोई भी जानवर किसी मुसलमान से अफजल नहीं हो सकता। बहरहाल तुम कहते हो कि वो उन घोड़ों के कदमों की खाक जो है ना वो अफजल है तुम्हारे गौस कुतुब अब्दाल से। तो मैं तो छोटी बात कर रहा हूं, बाबे तेशाही कोई नहीं। मुझे तो कहना चाहिए कि अबू बकर उमर उस्मान अली जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, तेरे बाबे ते अबू बकर उमर उस्मान अली के घोड़े की खाक के मुकाबले में भी शाही कोई नहीं। मुझे तो ये बोलना चाहिए, तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं, रुजू करा फिर मैं भी जी बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। जियादीन इंजीनियर साहब नारा लगाते हैं, तुमने ये नारा लगाया है ना कि कोई गौस कुतुब अब्दाल जो है वो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकता। खुद से एक जाली कहानी। हाँ ये जरूर है हदीस अबू दाऊद के अंदर, जब मौला अली इस्लाम के ऊपर सबो शतम करवा रहे थे, बनु उमैया के लोग कर रहे थे, हजरत मुगीरा इब्न शोबा की मौजूदगी में, वो गवर्नर कूफा थे, वो अपने सामने करवा रहे थे, मुस्नद अहमद में मौजूद है, जिधर फिर उनको बड़ा गुस्सा आया हजरत सईद इब्न ज़ैद को, जो अशरा मुबशरा में से थे और हजरत उमर के वो बहनोई थे। उन्होंने कहा ओए मुगीरा, ओए मुगीरा। और एक रवायत में आता है इस जालिम को देखो अपने सामने एक जन्नती के ऊपर लानत करवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नबी के साहबी के सामने ये हो रहा है कि एक जन्नती शख्स के ऊपर लानत करवाई जा रही है। मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना था, अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा जन्नत में। अशरा मुबशरा वाली उन्होंने हदीस सुनाई और उन्होंने कहा कि याद रखना तुम बाद के लोग जितने हो ना, तुम्हें उम्र नू भी मिल जाए ना, तो जो नबी का साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक रहा और उसके चेहरे के ऊपर गर्द आ गई, मट्टी, उस जिहाद की वजह से, तो कोई शख्स जो है उम्र नू भी उसे मिल जाए ना, वो पूरी जिंदगी नेक अमाल करता रहे ना, वो साहबी के बराबर नहीं हो सकता। हदीस में यह था कि जिस साहबी के जिस्म पे गर्द आ जाए जिहाद करने की वजह से, उस साहबी के बराबर उम्र नूह के बराबर भी किसी को उम्र मिल जाए, वो नेक अमाल करता रहे नहीं पहुंच सकता। इन्होंने कहानी बना दी कि घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। जो सही बात है वो मैंने आपको बताई क्या मौजूद है। तो जब तुम कहो कि कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, तो तुम खुद ही कह रहे हो ना बाबे शाही कोई नहीं। हम तो फिर भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ होता है, और जब इख्तलाफ होता है तो अब आपकी ज़ुबान जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ ये इसकी जुबान है। ये आपने फरमाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, तेरे वजूद पर थू, तेरे किरदार पर थू, तेरे नज़रिए पर थू, तेरे नस्बुलैन पर थू। जुमलों के ऊपर जरा गौर करें। लोग हमें
اخلاق سکھاتے ہیں نا. تیرے نسب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے. مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلا ہے، دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تھوڑے نال بعد کریں گے، فی الوقت انجینئر صاحب نے کچھ کر لیا. تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے. تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے. ایک منٹ میں بتا دوں، صرف اب تسی دا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو. افریقہ دا باندر. اب ان کی چیخیں سنیں، ان بندروں کی جن کو نبی علیہ السلام نے کہا بندر. سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے. تو بال آنی ہے میرے نال بھائی، علمی بات کر رہے ہیں، علمی جواب دے. ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں. اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی. ابھی تو میں آپ کے بزرگوں کی، ہاں ان کے بزرگوں کی زبان بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو وہاں آئے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے، پرانے ٹھیک سن، پرانے تے اللہ معافی دے، توبہ 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 کرو. وہ تے اس تو زیادہ پیڑے سن، یہ تے میڈیا دی وجہ نال تھوڑے ہلکے ہو گئے نا. ہاں وہ بہت پاری سن. کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے. رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے. ہائے 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 ہائے. اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیاں سے تعبیر کرے. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے فرینچ زبان میں گالیاں نکالنا. والعیاذ باللہ تعالی. بے شرمو، تم لوگوں کو اپنی قبر و آخرت کی بھی فکر نہیں ہے. جو چیز میں قرآن کی فیور میں بول رہا تھا اس چیز کو تم نے میرا نیگیٹو پوائنٹ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی. حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا. پورے کانٹیکسٹ میں بات چل رہی تھی. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ کا کوئی دوست فرانس میں گیا ہو اور وہاں سے آپ کو فرینچ لینگویج میں کوئی خط لکھے تو آپ کئی ایک لوگوں سے رابطہ کریں گے کہ اس کی ٹرانسلیشن کروائیں. پتہ لگے کہ ڈالر ہی نہ بھیجے انہوں نے، یورو ہی نہ بھیج دے. لیکن آپ اللہ کی کتاب کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے جتنی اہمیت ایک دوست کے خط کو دیتے. اور یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ کسی انسان کے ساتھ گفتگو کی ہے. اب قیامت تک نہ کوئی پیغمبر آنا ہے نہ کوئی کتاب. اس کی امپورٹنس تو ساری کتابوں سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ نے اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دی. اور پھر میں نے تفنن کے طور پر ہمارے پنجاب میں ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے جو اگلے دن مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی اپنے جلسے میں وہ لطیفہ سنایا ہے. وہ لطیفہ یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ سعودی عرب گئے کام کے سلسلے میں، وہاں ان کا عربیوں سے جھگڑا ہوا، انہوں نے ان کو گالیاں نکالی، انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی. جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے اور وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے. یعنی عربی میں گالیاں جو ہیں وہ ہمارے اجمیوں کو تو قرآن ہی لگے گا نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ترجمہ جو نہیں آتا. اور یہ لطیفہ اگلے دن مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو میں سنایا. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ہمارا بھی سٹیٹس یہی ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے یا فرینچ میں کوئی گالیاں نکالے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس زبان کا مطلب، نہ اس کی کوئی سمجھ ہے. جو چیز قرآن کی فیور میں بول رہا تھا اسے انہوں نے میرا نیگیٹو پوائنٹ بنا کے پیش کیا، صرف اس لیے کہ یہ بات کریں اور میں پھر ان کی مرضی ٹھوکوں. اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت کو اسکرین پہنچانے کے لیے. رکو ذرا، صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. یہ بھی کافی اٹھایا، یہ تو ہر جمعے میں انہوں نے تماشا لگایا ہوتا تھا کہ جی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. ظالموں، اللہ کو جان دینی ہے، تم لوگ تو واقعی یہودی ایجنٹ نکلے ہو. میرے جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا. یہ بات میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے کی تھی اور تم نے کہا کہ یہ کہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. 180 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے. نقل کفر نہ باشد. اگر آپ کسی کافر کی نقل اتار رہے ہیں اور اس کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کفر شمار نہیں ہوتا. مثلا اگر میں کہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ مسحور ہے، اس پہ جادو ہوا ہوا ہے، یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام اسے قرآن سکھاتا ہے. توبہ توبہ توبہ. سب سے بڑھ کر ہماری ماں سید عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی. اس سے بڑی کو تکلیف دی جا سکتی تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ اعتراضات ریپیٹ کرتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے ریفرنس سے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے.
ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے میں نے اردو کا محاورہ استعمال کیا تھا, اور محاورہ اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. یعنی ہم لوگ یروشلم کے پاسباں سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے ہوئے, نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانند تھے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی تو داڑھی پوری زندگی سفید ہوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں یہ لفظ دکھاؤ. اگر یہ اس طریقے سے لفظ دکھائے جانے والی اگر آپ بات ڈیمانڈ کریں گے تو تمہارے سارے قرآن کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے. ہم قرآن کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے اس زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر سٹیٹمنٹ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے زید ابن ارقم کے اس واقعے کے حوالے سے جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. نعوذ باللہ, رسول اللہ کو, صحابہ کرام کو ذلیل کہا. زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی, نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ یہ خبیث یہ بکواس کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو وہ انکاری ہو گیا, چٹا جھوٹ بول دیا اس نے. زید ابن ارقم بڑے پریشان ہوئے اس حوالے سے, اور گھر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان لڑکے پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ان کے حق میں آیات نازل کر دی. سورۃ المنافقون میں ایگزیکٹ وہ گستاخانہ الفاظ نقل کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. یعنی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہا. پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور اہل ایمان کے لیے ہے, مگر منافقین نہیں جانتے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں چھوکرے کا ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ ان کی اردو شستہ تھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو چھوکرا تھا نا زید ابن ارقم, اس کے حق میں قرآن نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ وہ چھوکرا صحیح کہتا تھا, عبداللہ ابن ابی غلط کہہ رہا تھا. اب چونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں نہ ٹھوکی تھی, یہ بیان القرآن کے الفاظ ہیں, میں ویڈیو میں لگاؤں گا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ بات میں نے نہیں کہا, یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے. حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. ہم نے سن کے تو نہیں کہا کہ انہوں نے زید بن ارقم کو چھوکرا بول دیا. اور بھائی نوجوان لڑکے کو چھوکرا ہی بولا جاتا ہے اردو میں. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. ڈکشنری اردو کی کھول لیں, اس میں چھوکرا ورڈ دیکھیں, آگے لکھا ہوگا نوجوان لڑکا. چھوکرے کا ورڈ قرآن میں بھی موجود ہے. ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے, جس کا نام ابراہیم ہے, سورۃ الانبیاء میں. ظاہر نوجوان تھے, تو اس ورڈ کے اوپر کیسے اعتراض ہو گیا؟ اور وہ بھی جب کافروں کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے. نہ ورڈ کے اوپر اعتراض ہوگا اور نہ کافروں کے ریفرنس سے جب بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے. جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ظالم قرار دے کہ میں نے کون سی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے؟ جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو, سیدہ عائشہ کی شان میں لیکچر سارے میرے ہیں. میرے اوپر الزام لگاتے ہو. ان کو چندہ چاہیے, جھوٹ بولنا پڑے بول لیں گے آپ کے ساتھ. جو بندہ سیدنا امیر معاویہ, سیدنا عمر بن العاص, سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے, جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار. صحابہ کرام کی تو یار ترے بندیاں نو صحابہ کرام بناتا جے. مسئلہ تو 3 بندوں کا ہے, حضرت معاویہ کا, عمر بن عاص کا, مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے, لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, بلکہ حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے. پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ منکرین زکات, مسلمہ کذاب کے ماننے والے, مرتد, سیدھا مرتد لفظ بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی خارجی. خارجی تو اس زمانے میں آئی نہیں تھے, بلوائی, ہاں بلوائی کہہ سکتے ہیں, اور ان میں کئی صحابہ بھی تھے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, ان کا آپس کا اختلاف تھا. واہ, نالی حدیث بھول گئے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب بھی بولو نا, چوتھے خلیفہ کے مخالفین, خارجی, ناسبی, یہ الفاظ استعمال کرو نا. میں صرف آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ملک جو پہلے فرقہ واریت میں پہلی بات تو یہ آپ ذرا سنیں, اگر ہم نے کسی بریلویوں کے اوپر کوئی فتویٰ بازی کی ہے, اگر کوئی ہم نے دیوبندیوں کو برا بلا کہا ہے, اگر ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں بات کی ہے, تو پھر تو آپ مجھے بات کریں. ایون گامدی صاحب کے بارے میں بتائیں. تنو پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا, کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں نے منجی ٹھوکی ہے. ہاں, تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے